Good morning, students. Today we will discuss about how can we change the state of matter by changing pressure. In our last lecture we discussed about how to change the state of matter by changing temperature. Suppose we have a gas. Particle of gases are free to move here and there. Means there are lot of interparticle space between gas particles. Gas particles is having lot of interparticle space. When we apply some pressure, or we can say more pressure on these particles, then the interparticle space, then the interparticle spaces decreases. प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, इनके बीच की जो इंटरपार्टिकल स्पेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. देन गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. देन इट इज कॉल्ड लिक्विफाइड गैस. गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. बिकॉज देयर इज लिटिल स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स, देन गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. तो देन हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम गैस to liquid? By applying more and more pressure. Pressure will be increase and temperature will be increase. टेम्परेचर को कम करना है, प्रेशर जो है उसको ज़्यादा करना है, तो हमारी जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. देन इट इज़ कॉल्ड लिक्विफाइड गैस. देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ गैसेज विच कैन बी लिक्विफाइड. LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. CNG, compressed natural gas. And NH3, ammonia. NH3 is called ammonia. It can be also liquefied. When we apply more and more pressure on these gases, then it is converted into liquefied. Next, have you heard the name dry ice? Dry ice, or it is also called solid CO2. Solid CO2 or dry ice. CO2, when we apply more pressure on CO2, when we apply more pressure, then CO2 is converted. CO2 जब इस पर प्रेशर अप्लाई किया, हाई प्रेशर, then it is converted into solid. Then it is converted into solid, and solid CO2 is also called dry ice. Solid CO2 is also called dry ice. Okay, this is an important formula for you all. Dry ice is called solid CO2. Okay, this topic is end here because we discuss two method of change of state of matter. कि हम जो मैटर की जो स्टेट्स हैं उनको चेंज कैसे कर सकते हैं, बाय चेंजिंग प्रेशर और बाय चेंजिंग टेम्परेचर. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज इवोपोरेशन. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज इवोपोरेशन. We saw some example in our daily life where the water, or we can say a liquid is converted into gas. लिक्विड जो है वो किस में चेंज हो रहा है, हमारा गैस में चेंज हो रहा है. तो इन आवर लास्ट लेक्चर और इन आवर लास्ट टॉपिक्स वी हैव डिस्कस दैट चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग. लिक्विड का गैस में चेंज होना क्या है, बॉइलिंग. Suppose we have liquid. By heating process it is converted into gas. Then it is called, ये क्या हो गया हमारा, boiling. Okay, but there are some example in which liquid is converted into gas, but that process is not called boiling. एग्जाम्पल लाइक वी हैव वेट क्लोथ्स. हमारे पास में क्या है, गीले कपड़े हैं, हमने उसको क्या कर दिया है, ड्राई अप करने के लिए रखा है. तो गीले कपड़ों में क्या है, लिक्विड, और थोड़े टाइम बाद क्या होगा, वो कपड़े
सूख जाएंगे, दे विल ड्राई। तो क्या इस मेथड को हम बॉइलिंग कहेंगे? नो, इट इज़ नॉट बॉइलिंग। स्वेट, हमारे बॉडी से जो स्वेट आउट होता है वो भी थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? ड्राई अप हो जाता है। तो उसमें भी हो क्या रहा है? लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, बट दिस इज नॉट बॉइलिंग। वो क्या है? बॉइलिंग नहीं है। तो वो फिनोमिनन क्या है हमारा? इवोपोरेशन। क्या है हमारा? इवोपोरेशन। नाउ नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इवोपोरेशन। इवोपोरेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? phenomenon in which liquid get converted into water vapor at any temperature below its melting point, below its boiling point. Okay, then what is evaporation? Evaporation is a phenomenon in which liquid get converted into water vapor at any temperature below its boiling point. Liquid converted into gas at boiling point, then it is called boiling. But liquid get converted into gas at any temperature, then it is called evaporation. ठीक है। देर आर सम एग्जाम्पल ऑफ इवोपोरेशन। परफ्यूम बॉटल, घर पे हमने देखा है कि हमारी जो परफ्यूम की बॉटल है उसको अगर हम खुला रख देते हैं तो वो परफ्यूम जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? इवोपोरेट हो जाता है। स्वेट, बॉडी से जो स्वेट आउट होता है वो भी ऑटोमेटिकली क्या होता है? इवोपोरेट, मतलब लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस। और ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़े जो है उनका सूखना, ये भी किसका एग्जाम्पल है? इवोपोरेशन का एग्जाम्पल। ओके, तो am I clear that what is evaporation? Now the topic is difference between boiling and evaporation. Difference between boiling and evaporation. There are some differences between boiling and evaporation. Let us discuss them. So first I am writing boiling here and evaporation. The first difference is temperature. At any temperature, ये जो है boiling process जो है वो कहाँ होगा? At boiling point, at BP. और ये क्या होगा? At any temperature. Evaporation can occur at any temperature. Boiling is a fast process. But evaporation is a slow process. Let's suppose we have some milk. मिल्क को हमने गैस पर बॉईल करने के लिए रखा है, और या हम कह सकते हैं हमारे पास में क्या है? वाटर, हम उसको बॉईल कर रहे हैं और वाटर को हमने किसी वेसल में खुला छोड़ दिया है। तो वाटर को इवोपरेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा और उसको बॉईल होने में कम समय टाइम लगेगा। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? बॉइलिंग इज़ अ फास्ट प्रोसेस एंड इवोपरेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस। थर्ड इज इट इज़ अ बल्क फिनोमिना और इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना।
बल्क फिनोमिनन मीन्स क्या हो गया कि हमारा जो वाटर है उसको बॉईल कर रहे हैं, तो ऑल द पार्टिकल ऑफ वाटर इज बॉइलिंग। बट इन इवोपरेशन only the particles at surface, let's suppose we have liquid, the particle which are at surface is having more kinetic energy। जो पार्टिकल सरफेस पे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए वो तो क्या हो जाते हैं, फ्रीली इवोपरेट हो जाते हैं। लेकिन सारे जो पार्टिकल्स जो है वो इवोपरेट नहीं होते हैं। दैट्स वाई बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन एंड इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। और नेक्स्ट वन इज कूलिंग इफेक्ट। बॉइलिंग does not cause cooling effect, doesn't cause cooling effect, but evaporation causes cooling effect। बॉइलिंग को जो हीट एनर्जी मिल रही है वो किसी सोर्स से मिल रही है, जबकि इवोपरेशन में क्या होता है, जो पार्टिकल ऑफ लिक्विड्स है वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और इवोपरेट हो जाते हैं। जब सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है तो सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है वो कैसा हो जाता है, कूल हो जाता है, जबकि बॉइलिंग में ये चीज़ नहीं होती है। तो देयर आर 4 डिफरेंसेस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवोपरेशन। फर्स्ट वन इज boiling is occurred at boiling point, evaporation can occur at any temperature। boiling is a fast process, evaporation is a slow process। boiling is a bulk phenomenon and evaporation is a surface phenomenon। and fourth is boiling does not cause cooling effect or evaporation cause cooling effect। there are 4 difference। take a screenshot of this because दिस इज़ नॉट इन योर टेक्स्ट बुक। ये चीज़ जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन नहीं की हुई है, लेकिन इसको आपको सीखना क्या है, नेसेसरी है, एसेंशियल है। इसीलिए आप क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन एंड बॉइलिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवोपरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवोपरेशन। इवोपरेशन की रेट को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवोपरेशन। Okay, the first point is surface area। surface area। घर पे अपनी मदर को, सिस्टर को आप लोगों ने कपड़े सुखाते हुए देखा है। वो क्या करते हैं, कपड़ों को फैला के उसका सरफेस एरिया जो है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करके कपड़ों को फैला के उसको रस्सी पे सुखाते हैं। एज दे कैन ड्राई ईजीली और फास्ट, मतलब कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको फैला के सुखाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जब सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होगी, इंक्रीज। रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होगी, इंक्रीज। तो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी ज़्यादा होगी। इसको हम अपने डेली लाइफ के एग्जांपल से एक एक पॉइंट को समझेंगे। अगर हमने कपड़े को फैला के सुखाया तो वो जल्दी सूख जाएगा। अगर हमारा कपड़ा जो है वो उसको हमने क्रश करके ही सुखाया है तो उसको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ इवोपरेशन जो है वो कम हो जाएगी। अब रेट ऑफ इवोपरेशन सरफेस एरिया से कैसे रिलेट करती है, अगर सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा है तो वो सराउंडिंग की हीट एनर्जी जो है उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही उनको हीट एनर्जी मिलेगी तो लिक्विड जो है वो फास्टली क्या हो जाएगा, हमारा गैस में, वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, सरफेस एरिया। नेक्स्ट पॉइंट विल बी विंड स्पीड। विंड स्पीड,
हमने देखा है घर पे जब विंड स्पीड मतलब हवा बहुत ज़्यादा चल रही होती है तो हमारे कपड़े जो है वो क्या हो जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, और हवा नहीं होती है तो कपड़ों को सूखने में क्या लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो विंड स्पीड जो है वो अगर ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब विंड ऑफ स्पीड जो है वो कैसे रिलेट करती है, विंड ऑफ स्पीड जो है अगर वो ज़्यादा होगी तो पार्टिकल ऑफ लिक्विड फास्टली क्या कर जाएंगे, वहाँ से मूव कर जाएंगे, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है विल बी इंक्रीज्ड। थर्ड पॉइंट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, लेट फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, amount of water vapor, amount of water vapor present in air, present in air, it is called humidity। water vapors जो है वो एयर में कितनी प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा इन्वायरमेंट है उसकी क्या है, एक लिमिट है कि वो एक पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे इतनी ही ह्यूमिडिटी, इतनी ही वाटर वेपर को क्या कर सकता है, कंटेन कर सकता है। तो जब भी ह्यूमिडिटी लो होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी, तब तो क्या होगा, हमारे कपड़े जो है वो आसानी से सूख जाते हैं। मतलब जब ह्यूमिडिटी लो है, वाटर वेपर का कंटेंट जो है एनवायरनमेंट में वो कम है, तो हमारा जो लिक्विड है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको ईजीली कंटेन कर पाएगा। इफ़ ह्यूमिडिटी इज़ हाई, when humidity is low then the rate of evaporation will increase, when humidity is high then the rate of evaporation is decreases। मीन्स मतलब ज़्यादा ऐसा ठंडा दिन है जहाँ पे धूप नहीं है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे जो क्लोथ्स हैं उनको ड्राई अप होने में क्या लगता है, थोड़ा समय टाइम लगता है। इसका मतलब क्या हो गया, जब ह्यूमिडिटी हमारी लो है, लो ह्यूमिडिटी मीन्स रेट ऑफ इवोपरेशन विल बी हाई, और हाई ह्यूमिडिटी द रेट ऑफ इवोपरेशन विल बी डिक्रीजेस। ओके, द थर्ड पॉइंट इज टेम्परेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेम्परेचर। Fourth point, temperature. If temperature is high, then the rate of evaporation will be high। बहुत ज़्यादा धूप है, टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट का वो बहुत हाई है, then the our clothes will dry up easily or very fast। But when the temperature is low, then the rate of evaporation will also be decreases। क्या होगा, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप है, तो उस टाइम इवोपरेशन की रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और हमारे कपड़े जो है वो आसानी से सूख जाते हैं। बट जब टेम्परेचर लो है, जैसे अब बारिश का मौसम है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो उस टाइम जो है रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो देयर आर 4 पॉइंट्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ इवोपरेशन। फर्स्ट वन इज सरफेस एरिया, विंड स्पीड, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज cooling effect of evaporation। cooling effect of evaporation। cooling effect means what? cooling effect means क्या हो गया, cooling effect। Have you heard a name? Nail polish remover। एसीटोन। बॉयज़ का तो नहीं कह सकती, बट गर्ल्स जो है वो अच्छे से जानती है कि व्हाट इज़ नेल पॉलिश रिमूवर। केमिकल नेम ऑफ नेल पॉलिश रिमूवर इज़ एसीटोन। जब हम क्या करते हैं, अपनी पाम पे एसीटोन को लेते हैं, उसको रब करते हैं, तो हमारी जो पाम है, हमारी जो हथेली है, हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा कूल फील करते हैं। क्यों कि होता क्या है कि ये एसीटोन जो है वो क्या करती है,
सराउंडिंग की जो हीट एनर्जी है, सराउंडिंग जो हीट एनर्जी है उसको क्या कर लेती है, एब्सॉर्ब कर लेती है, और हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद ये कुछ किस में चेंज हो जाएगी, वेपर्स में चेंज हो जाएगी। और जैसे ही सराउंडिंग की हीट एनर्जी कम हुई तो सराउंडिंग जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कोल्ड हो जाएगा, थोड़ा कूल हो जाएगा। तो कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवोपरेशन में हमको क्या देखना है कि जब भी जहाँ पे भी इवोपरेशन हो रहा है वहाँ पे क्या होता है, इवोपरेशन के लिए जो लिक्विड है उसको हम अलग से कोई हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो खुद क्या कर रहा है, सराउंडिंग की जो हीट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। और जैसे ही सराउंडिंग की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है तो सराउंडिंग जो है वो थोड़ा क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। दैट इट इज़ कॉल्ड कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवोपरेशन। There is one more example of cooling effect of, we sprinkle some water on a roof or ground। देखा है हमने घर पे हम क्या करते हैं, अपनी घरों की टेरिस पे या बाहर मिट्टी का जो हमारा मैदान है उस पर वाटर स्प्रिंकल करते हैं, जिससे हमको क्या हो, वहाँ पे थोड़ा कूल फील हो। ऐसा क्यों करते हैं हम, जैसे ही हमने वाटर स्प्रिंकल किया तो वो वाटर क्या करता है, सराउंडिंग की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और किस में चेंज हो गया, वेपर्स में चेंज हो गया। और जैसे ही सराउंडिंग की हीट एनर्जी डिक्रीज हुई तो सराउंडिंग जो है वो कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ओके, वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इवोपरेशन। समर्स में जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वी प्रिफर टू वियर कॉटन क्लोथ्स। हम क्या करते हैं, गर्मियों में कॉटन क्लॉथ जो है उनको पहनना प्रीफर करते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कॉटन इज़ अ नेचुरल फाइबर, कॉटन इज़ अ नेचुरल फाइबर विच कैन ईजीली एब्जॉर्ब द स्वेट विच इज़ कमिंग आउट फ्रॉम आवर बॉडी। कॉटन जो है वो क्या कर सकता है, स्वेट को ईजीली एब्जॉर्ब करता है, ताकि अब क्या होगा, कॉटन जो है वो हमारे स्वेट को इजीली एब्जॉर्ब करेगा और इवोपरेशन जब होगा तो हमारी बॉडी से ही हीट एनर्जी जो है वो बाहर आएगी। ये स्वेट जो है वो क्या करता है, बॉडी से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो हमारी बॉडी जो है वो थोड़ा कूल फील करेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू प्रिफर टू वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर डेज। ओके, वन मोर एग्जाम्पल ऑफ कूलिंग इफेक्ट। घर पे सबने फ्रिज में रखी बॉटल तो उठाई है, जैसे ही हम क्या करते हैं, फ्रिज में रखी जब बॉटल जो है, फ्रिज में रखी जो बॉटल है उसको जैसे ही लाते हैं, या जो फ्रिज का जो पानी है उसको जैसे ही हमने ग्लास में डाला तो हम क्या देखते हैं, सम वाटर ड्रॉपलेट्स एट आउटर सरफेस ऑफ दैट ग्लास। जैसे ये हमारी ग्लास है तो उसकी जो आउटर सरफेस है उस पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हैं। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है उसका रीज़न क्या है, क्या होता है कि हमारी एनवायरनमेंट में जो भी वाटर वेपर्स है, एनवायरनमेंट की जो वाटर वेपर्स है जब वो इस ग्लास के कांटेक्ट में आती है और ठंडी होके ये वाटर वेपर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसीलिए ये जो है वो हमको एज अ वाटर ड्रॉपलेट्स जो भी हमारा वेसल है उसके आउटर सरफेस पे दिखती है। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवोपरेशन। नाउ यू हैव टू read the practice question which is given in your textbook and try to answer this question which is related to evaporation, or if you have any doubt then ask me into your WhatsApp group or comment section of this video. Thank you.